this video. Okay. So what is cellular envelope? Basically, cellular envelopes are the glycocalyx molecule, and these have appearance of a gel-like outer covering of some bacteria, which helps in adhesion, as well as in difficult situation, in drying condition, they helps to prevent for desiccation or dehydration. Okay. Then there are two types of such envelope can be seen in the bacterium cells. On the bacterium cell, that one is the slime layer, which is diffuse and irregular structure, and another one is capsule. Okay. So cellular envelope, basically this is a glycocalyx. These may be of two types. It may be slime layer or it may be a capsule. Okay. So if the cellular envelope is distinct and of gelatinous structure, it is considered as capsule. Okay, समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रही हो, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो वो मुझे बता सकते हैं और मुझे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे कि उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, so that I can translate into Hindi as well. Okay. So there are two types, slime layer. आ रहा सर, समझ में आ रहा। अब हम लोग स्लाइम लेयर की जब हम बात करते हैं, when we are talking about slime layer, these are diffuse and irregular structure, means they have a particular space between that particular cell membrane and this envelope. But in case of capsule, these are distinct and these are very gelatinous structure, means stickiness. If having gelatinous structure means these have certain gelatinous properties. And what is the properties of gelatin? They help in the sticking. Okay. Sticking. So you see, Yes sir, sticking. how you can differentiate between the capsule and the slime layer. You can see the slime layer are very apart from these cells, and these doesn't have a particular structure, but the capsules are very smooth. They are very smooth and they are very much closely associated with the cell membrane, giving a particular shape. But in case of slime layer, these doesn't have any shape, but looks like the amoebic structure on the cell surfaces. So basically these are glycoproteins or glycocalyx. Now what is the function of these? So basically the function of these glycocalyx or cellular envelope is to protect against phagocytosis. What is phagocytosis? Phagocytosis is a process through which any foreign antigen is engulfed by a phagocytic cell. Okay, and the process involves the chemotactic movement of the phagocytes, then the formation of pseudopodia, engulfing and destruction and elimination of that particular antigen from that body. Okay, after denaturation in the small or short peptide fragments. Okay, so basically they protect against phagocytosis. They help in the encapsulation. To whom? They encapsulate bacteria. Okay, they encapsulate bacteria which tend to have a greater pathogenicity because of this. So bacteria can resist the phagocytic activity. यानी जब phagocytic activity होगी, then the outer surface of this cell membrane, मतलब जो cellular envelope होगा, they will be digested by these phagocytes. But the essential elements like cell membrane, the other essential molecules, macromolecules, they will be preserved, and they bypass this phagocytosis process through this. Clear? So how they protect themselves by this phagocytosis process with the presence of this envelope. Also, they help bacteria to adhere to its environment or any other bacteria, or to colonize bacteria in a particular location. One function is that they prevent drying, desiccation in critical environmental condition. Okay.
Next. So they allow the bacteria to stick to a large numbers of substances, including tooth enamel and hospital equipments. Many of you have seen that few of the persons, they have a yellow teeth, isn't it? And you can easily see that the enamels, these are the bacteria that they secrete certain kinds of polysaccharides to stick on these tooth surface, these solid surfaces, and these byproducts, these capsules or slime layers which prevent them to resist against that particular disinfectant. डिसइंफेक्टेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे हम लोग टूथपेस्ट के बारे में हम लोग बात करें, टूथपेस्ट में वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और वो करते क्या है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं. बट if bacterium having such envelope, they can prevent these oxidizing agent to enter to the bacterial cell membrane. Clear? They also allows bacteria to grow as biofilm. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना biofilm. So basically biofilm is nothing but these are the extracellular matrix secreted by these bacterium. Okay, so extracellular matrix, and these are polysaccharide molecules basically, so such as dental plaques. They help prevent the loss of water nutrients. तो ये क्या करते हैं, जब ऐसा कभी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, ऐसे क्रिटिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, इस ऐसे सिचुएशंस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लॉस होने से या वो बचाते हैं. क्लियर? आगे बढ़ो, कोई डाउट्स? No, sir. Okay, then we are discussing about the cell wall. So basically we are knowing that the bacteria were initially they were classified with the presence of cell wall. So basically these cell wall lies immediately below these glycocalyx. Glycocalyx means the capsule or any slime layer. So basically these cell walls lies immediately below the glycocalyx. So they provides the bacteria with structure and protection from lysis. How? Because cell wall, when we were discussing about cell wall, many of you have studied that cell wall very rigid in structure, isn't it? होता है ना? Yes, sir. Because of cross linkage. अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं, they are made up of what? They are made up of peptidoglycan molecules, isn't it? Peptidoglycan. Peptidoglycan. So this is the basic unit and the basic unit of this cell wall structure. So in this peptidoglycan is a combination of what? N-acetyl muramic acid and acetyl glucosamine, which are linked together by the beta-1,4 linkage. These are cross linked with the beta-1,4 linkage. अब beta-1,4 linkage कैसे है, कौन से कार्बन चेन से, यानी कार्बन 1 जो चेन होगा वो कार्बन 4 चेन के साथ कंबाइंड होगा, क्रॉस चेन होता है, ठीक है. So basically they provides the bacteria with structure and protection from lysis, like certain drugs including penicillin. What penicillin does? Penicillin block this beta-1,4 linkage, and hence they destroy the cell wall and allowing cell lysis to occur. अब ये cell lysis होती कैसी है? कैसे हो सकता है ये cell lysis? सेल को श्रिंक कर देता, वो हाइपरटोनिक ये सब मीडियम. जब beta-1,4 linkage it will be broken down. Okay, जब ये लिंक क्रैक होगा तो क्या होगा, जितने भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स हैं that will be come out in the presence of water. तो हाइपरटोनिक जब हम बोलते हैं तो क्या करना है, हाइपरटोनिक जो होता है वो बैक्टीरियल सेल हो गए, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो गया, तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल तुम लोग पढ़े होंगे, ये क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा, दे विल मूव, ठीक है, और इससे क्या होगा, ये लाइसिस हो जाएगा सर, ठीक है. Then composed of 2 repeating subunits. They are composed of 2 repeating subunits. Which one? The peptidoglycan. That is
just right now I have called it N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, which are covalently linked together by a glycan chain that is known as beta-1,4 linkage, which are adjacent glycan chains and held together by tetrapeptide chains attached to each NAM, N-acetylmuramic acid and NAC. Okay. Then 4. Bacteria are lumped into two groups based on this staining of their cell walls. आप सभी लोगों ने ग्राम स्टेनिंग किया? Yes, sir. ग्राम स्टेनिंग, ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, that was developed by Hans Christian Gram. He was associates of Robert Koch. Okay. ये जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने ही तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, इसी सेल वॉल कंपोनेंट के आधार पे, क्योंकि जो हम लोग जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम हैविंग अ थिक सेल वॉल एंड द कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, उसके कंपोनेंट हायर होते हैं with regard to the gram negative bacteria, where the main constituent of cell wall is lipopolysaccharide. जो लिपिड होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड थिंग कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अदर कंपोजिशंस क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है टेकोइक एसिड. ठीक है. इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, साइलिक एसिड जो वीक एसिड है, टेकोइक एसिड जो कि एडिक्वेट, हाँ, जो हायर एसिडिक है. अब ग्राम जब स्टेनिंग हम करते हैं तो केमिस्ट्री क्या होती है उसकी, केमिस्ट्री क्या होती है, हम लोग बेसिकली दो तरह के स्टेन का यूज करते हैं. हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग इन विच वी जनरली यूज अ सिंगल स्टेन फॉर द स्टेनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर. यानी सिंगल स्टेनिंग टेक्निक में, सिंपल स्टेनिंग टेक्निक जिसको हम लोग सिंगल स्टेनिंग भी बोल सकते हैं, उसमें हम एक ही स्टेनिंग या एक ही डाई का यूज करते हैं किसी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए. स्टेन मतलब कलर करने के लिए एक सिंगल डाई का यूज करेंगे सिंपल स्टेनिंग में. ठीक है. डिफरेंशियल स्टेनिंग कहने का क्या मतलब है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक बैक्टीरियम को दूसरे बैक्टीरियम्स को के साथ, तो उसी को हम डिफरेंशियल स्टेन करते हैं. तो डिफरेंशियल स्टेन हम कैसे कर सकते हैं, where more than one dye is used to stain the pathogen or bacterium. क्लियर. तो वो क्या होता है, वो दो तरह के स्टेन होंगे, एक होगा एसिडिक प्रॉपर्टीज और एक होगा बेसिक प्रॉपर्टीज. बेसिकली जो ग्राम स्टेन हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं. बेसिकली क्रिस्टल वायलेट जो होते हैं वो बेसिक डाई होते हैं. These are basically basic dyes. ठीक. और ये होता क्या है, जब हम ग्राम स्टेन करते हैं किसी भी बैक्टीरियम का, ठीक है, तो होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसके जो सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है टेकोइक एसिड. जब एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे तो दैट विल रिटेन द बेसिक डाई मच मोर बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी. हम लोग जानते हैं ना, पॉजिटिव विल कंबाइन विद नेगेटिव, मोर एफिनिटी होगी, क्योंकि बैलेंस मतलब एटॉमिक बैलेंस करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा. एम आई राइट? यस सर. ठीक है. तो अब होता क्या है कि यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होंगे यदि एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा तो वो क्या होगा, बेसिक डाई को रिटेन करेगा. यानी एक्सेसिव डाई जब हम डिस्टिल्ड वाटर में जब उसको हम वॉश करेंगे तो एक्सेसिव जो एक्सेस डाई होगा वो तो वॉश आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा. ठीक है. लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव में जो बेसिक डाई होंगे, जो बेसिक चार्जेज है कैटायंस, वो एनायंस के साथ कंबाइंड करके वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा. क्लियर. और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली जब हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये कर रहा है तो ऑब्वियसली दे आर हैम्परिंग समवेयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिडिक मतलब द सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहा है ना. इसलिए इन दैट केस
हम लोग मॉर्डेंट का यूज करते हैं। सेकेंड, आयोडीन। मॉर्डेंट का काम क्या होता है? दे ओपन द पोर स्पेसेस एज वेल एज दे इंक्रीज द एफिनिटी टुवर्ड्स द आयोनिक एक्सचेंज। ठीक है, आयोडीन क्या करता है? वो मॉलिक्यूलर स्पेस को तो ओपन करते ही है, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो एफिनिटी होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बेसिक डाई होता है वो अच्छे तरीके से, जो एसिडिक कंस्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का, उसके साथ अच्छे तरीके से बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या डालते थे? डिस्टिल वाटर से हम उसको वाइप करते थे, जितने भी हो वो एक्सेसिव वो रिलीज हो जाए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या यूज करते थे? सेकेंड, डिफरेंशियल, मतलब काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन कहने का मतलब है, ये जो काउंटर स्टेन जो सेफ्रानिन होता है, जनरली दीज आर एसिडिक डाई। तो अब ये एसिडिक डाई बाइंड करेगा नहीं? करेगा। वंस बेसिक डाई इज बाइंडेड विद द एसिडिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, द एसिडिक, जो हम लोग एसिडिक डाई यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? वो थोड़ी देर के लिए तो स्टेन होगा, लेकिन जैसे ही हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, दैट विल बी वाइप ऑफ। होगा या नहीं होगा? वो वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो वहां पे क्या होगा? जो बेसिक डाई है वो रिटेन नहीं वो करेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, जो बेसिक डाई है उसको रिटेन नहीं करेगा, लेकिन इस एसिडिक जो एसिडिक डाई है उसको रिटेन करेगा, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव इसीलिए पिंक कलर शो करेगा, और ग्राम पॉजिटिव इसीलिए हम लोगों का वायलेट कलर शो करता है। हम लोग डी कलराइजर का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली डी कलराइजर इज मेड अप ऑफ इथाइल अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल करता है क्या? जितने भी है, मतलब जितने भी डाई होते हैं उनको क्या करता है? रिमूव कर देता है, हटा दो। स्पोस जो पोर स्पेस होते हैं उनको ओपन कर देता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो इसीलिए जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं, हम लोग जब भी स्टेनिंग करेंगे, वी कांट सी द स्टेन्ड बैक्टीरियल सेल in a living condition. Clear? But you can use phase contrast microscopy to visualize these specimen without dyeing that, without using such stain. ठीक है, जब भी आप स्टेन यूज करते हो तो आप वो बैक्टीरिया क्या होता है? किल हो जाता है। और जब आप स्टेन नहीं यूज करते हुए आप उसको देखना चाहते हो, देन यू हैव टू वेरी efficient enough to operate all those microscopes through which we can visualize unstained bacterial cells, like phase contrast microscope or other microscope. Clear? समझ में आया ना? सर 1 मिनट, काउंटर डाई का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। सैफरीन का क्या यूज हुआ? सेफ्रानिन इज अ बेसिकली एसिडिक डाई। एसिडिक डाई। ठीक है, तो अब एसिडिक डाई है तो दे विल शो मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो बेसिकली दीज आर बेसिक्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड। यस। अब लाइपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट में हायर है, तो वो क्या करेगा? ये बाइंड करेंगे एसिडिक डाई से। क्लियर? यही काम होता है। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारा जो बैक्टीरियम है वेदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सो व्हाई वी यूज टू स्टेन्स और डिफरेंशियल स्टेन्स टू विजुअलाइज वेदर दीज बैक्टीरियम हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मींस यस। क्लियर? अब क्लियर है ना? यस यस यस। तो इस तरीके से हम देखते हैं, और आप सभी लोगों ने ग्राम स्टेन किया है। हाँ, यस यस सर। यस सर। सर सैफरीन सर एसिडिक होगा तो वो बेसिक, जब कोई भी डाई यदि एसिडिक चार्ज, ठीक है, एनायनिक है, तो दे विल बाइंड विद व्हाट? कैटायंस। यस सर। व्हाट? सर हेलो। हाँ, यस हेलो। सर सैफरीन तो सर एसिडिक है तो वो बेसिक के साथ साथ एनायन हो जाएगा। यस,
जब एसिडिक है तो वो किसके साथ बाइंड करेगा? एनाइन के साथ, ठीक है। Yes. Anion means positive, cations means negative, isn't it? So they will bind with anionic. Okay. So basically gram-negative bacterium show the anionic properties. ठीक है। तो अब ये बाइंड किसके साथ करेगा? Anionic के साथ। ठीक है। इसीलिए हमारा जो ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया था वो कौन सा कलर शो करता था? पिंक कलर। अब समझ में आया? हम लोग ग्राम स्टेन जो करते हैं और जो बर्गीज मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन था आपने उसमें देखा होगा कि हम लोग फेनोटाइपिक प्रॉपर्टीज देखते हैं या विजुअलाइज करते हैं। फेनोटाइपिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, जो आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं? मोटिलिटी देखते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड से। Yes, sir. हैंगिंग ड्रॉप हम लोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वंस वी हैव यूज द ग्राम स्टेन तो वो बैक्टीरियम किल हो जाएगा, तो क्या वो मोटिलिटी शो करेगी? नहीं करेगा। नो No, sir. No, sir. तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग वेट माउंट क्लियर या हैंगिंग ड्रॉप करके उसको देख लिए। सेकेंड, जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो पॉसिबली आप लोगों के क्लास नहीं हो सके, नहीं तो मैं करवा के बताता कि किस तरीके से है। मैंने आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक दे दिया है। कुछ आपके नए फ्रेंड्स जुड़े होंगे आपके इस ग्रुप में, so kindly add them in microbiology WhatsApp group. ठीक है? Anyone? How many persons are there? I do not know. But those who has taken admission, kindly they can make a contact with their classmates and they can join the group immediately. Because we have already covered, I think 25% syllabus we had covered. ठीक है? ओके तो आप सभी लोग जो है वो उनको जो है वो जोड़ दीजिए। मुझे लगता है 25% से भी ज्यादा ही हो गया है, तो उनसे शेयर कीजिए। और यहाँ पे जितने भी हैं अभी मैं फिलहाल यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स के बाद फिर इंटरप्शन आने लगेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि कुछ हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, सो दे कैन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू मी एंड एवरीवन, so that they can be added anyone कोई है नए? यस सर who is this? सर मनीष कुमार 1 minute, so I am just ending this, okay? ओके अरे तेरी कई सब Okay. थैंक यू सर। no 1 minute.